When India lost the second test, Captain Kohli would have said to his boys, "Don't worry, this is just a chapter and not the whole story." The story now is looking so beautiful. Test number 2, day number 2, session number 1, India conquering the proceedings. I'm Padamjeet Sherawat. Welcome. Big booming hello yet again to Cricket Live. Yet again, we've picked up Yash Paji, as he's popularly known, from Cricket Gupshup right here. Paji, मतलब मैराथन चल रही है आपकी तो? बिल्कुल, देखिए मज़ा आता है। हाँ। और ख़ास करके जब टीम अच्छा कर रही हो, हाँ। तो हम तो शुरू से ही खेलते हुए भी टीम के लिए खेले, अब बहुत बड़े वेल विशर्स हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि देखिए जिनके हाथ में ये बागडोर है ये सुरक्षित है, लेकिन जब अच्छा करते हैं ना तो दिल बाग बाग हो जाता है। So before we go to Saurabh, I know there's something very, very important here, and the important thing is that we need to look at that scorecard because that gives so much satisfaction. If you look at that, Paji, this is 39 for 4. We lost the first test, but India is bouncing back and how? आपके साथ मैंने बात भी की थी कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि जो 50 रन बनाएगा वो 100 के बराबर है। मेरे को आज अभी भी ये चैलेंज है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप पर, वो बहुत बड़ा कारनामा करेगा जो 50 रन वो 100 के बराबर होगा। 50 रन कौन बनाता है ये मुझे देखना है, क्योंकि ये जो पिच है ना इस पर बड़े बड़े दिग्गज भी मैंने धराशायी होते देखे। India has not conceded an extra yet, but India's innings has just been about 18 overs, Paji. When England bowled their first innings, that's something we need to talk about. Yeah. They bowled so many overs and they did not even concede a single extra. England in their innings. Now that actually tells us about discipline. And when you talk about discipline, I get reminded of the legendary Kapil Dev, who still is a very good friend of yours. You've been teammates all over. You had great respect for each other. He never bowled a single no ball. Forget about the match in the nets. And that is discipline. शुरुआत में, हाँ, क्योंकि हम लोग, मैं यूनिवर्सिटी में उसका कप्तान था जी, तो हम जब टीम में आए शुरू में थोड़ी उसको दिक्कत थी जी, और वो कभी कभी नो बॉल हो जाती, लेकिन 2 या 3 महीने के अंदर उसके बाद जो उसने इम्प्रूवमेंट की है कपिल देव ने, और उसके बाद अंपायर ढूंढते थे कि कपिल देव नो बॉल करे, लेकिन उनको विश्वास था कि कपिल देव कभी भी नो बॉल नहीं करे। And we're looking at some pictures here. These are happy moments. This is the legend that we have in our studio with the one and only. I mean, India's or Haryana's hurricane, India's pride. We've never had a bigger all-rounder, Kapil Dev. I mean, I see the smile on your face when you see Kapil Dev. The smile, booming smile on the face of हमने बहुत सुनहरे पल बिताए हैं, वो जब तक जिंदा हैं वो याद रहेंगे। Oh, lovely. This is so good to watch. And we're talking about discipline here. We are talking about the fact that England did not even concede a single extra. No leg by, nothing whatsoever, which kind of can be a record. And that is right there. I mean, Paji, when you look at, they bowled 95.45 overs, nearly 96 overs, not even a single extra. That's something very unique. देखिए ये सरप्राइज़ है मेरे लिए, क्योंकि ऐसी पिच पर कि जहाँ पर कुछ भी हो रहा है और वहाँ पर एक्स्ट्रा रन्स ना होना, तो ये मुझे लगता है कि ये डिसिप्लिन वाला जो आप कह रहे हैं कि ये डिसिप्लिन का ही काम हुआ है। The other thing which I noticed in that stat, in the scorecard, is Rishabh Pant wanted that one word which is so vital in sport and in life, support. And that is something which he did not get. Look at the numbers there. मतलब वो ऐसा लग रहा है कि phone number है वो 135004. All that he wanted कि बाकी सबसे थोड़ा contribution मिलता, इंडिया का ये स्कोर जो 329 है, ये actually 360, 370 भी होता। वो शायद प्लान में थोड़ी गड़बड़ी हुई। अगर आप देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टेस्ट देखें कैसे मार खाई और कैसे अपने आप को रोका और वो फिर टेस्ट मैच भी जीते, तो ये काम जो बाकी के जो नीचे के बैट्समैन हैं उनको करना चाहिए था। आपने रोकने की बात की, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ बिकॉज दैट इज वन गेस्ट दैट यू हर्ड फ्रॉम। एक और हमारे साथ है जो हमें मुस्कान भी देते हैं, हमें हंसाते भी हैं। सौरभ सिंघल, वेलकम टू द पोस्ट लंच शो। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मैं आपसे चाहूंगा कि जावेद मियांदाद बड़े उम्दा क्रिकेटर हुआ करते थे, जी। उनकी मिमिक्री आप बड़ी बेहतरीन करते हैं, तो जावेद मियांदाद को यहाँ पर भारत की परफॉर्मेंस देख के वो क्या कहेंगे, किस अंदाज में कहेंगे? सर तो खेले हुए हैं उनके साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि किस तरीके से वो बोलते थे, लेकिन जो जितना मैंने उनको सुना है वो ऐसे बोलते थे कि भाई जाके हमारे बहुत बेहतर के हैं जी। मैं आपको पहले से बता दूं कि जितना भी मैं जानता हूँ, जितना अपना वो है, देखिए रवि शास्त्री वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने एक बार भी वहाँ आकर के, जैसे मैं कहता था कि ऐसे मार, ऐसे कट कर, ऐसे बॉल को स्ट्रेट ड्राइव कर, ऐसे पुल खींच, ऐसे कर, कि कोई आगे के उन्होंने बोला नहीं। इस वजह से ना तो उसको सपोर्ट मिल पाई, आपके बच्चे को क्या नाम है, पंत। और इस तरीके से ना पूरी टीम आउट। अगर मैं कोच होता ना, मैं बताता आपको किस तरीके से कैसे खेला जाता है जी। जावेद मियांदाद जी, एक बात मैं आपको एज अ भारतीय कहना चाहूंगा, वो ये कि इस छोर का ना है कोई अंत, नाम है ऋषभ पंत।
क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। मैं आपसे बोलूंगा जी, अब आपने जो बोला है ना, मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया, देखिए ज़्यादा नहीं आया लेकिन जितना भी मैंने ये समझ में आ गया है कि इंडिया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, क्योंकि दे आर प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट राइट नाउ। पर Well said. ऋषभ पंत की आपने बात की है, मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। मुझे ये अलग करैक्टर दिख रहा है, ये खास करके जिस तरह से बैटिंग की है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और जो उसके जो शॉट्स थे वो इस तरीके से उन्होंने खेला कि मेरिट पर खेला, तो मुझे लगा कि ये एक अलग सा ऋषभ पंत दिखाई दे रहा है। क्या आप मानेंगे यश पाजी कि चूंकि वो इतना निखर के आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत उम्दा रोल होगा सपोर्ट का, बिकॉज व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट फॉर यू, उनका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, आलोचना भी बहुत हुई, बट you know, big players, what they do is they take every jibe, every criticism as a stepping stone to further success. That's the time when you have your back against the ball, when the chips are down, दिक्कतें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, मगर उस समय आपको कोच का और कप्तान का सपोर्ट चाहिए जो उनको मिल रहा है। ये एक खिलाड़ी बात कर सकता है। हाँ। ये मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। ये मैं दाद दूंगा कप्तान की, टीम मैनेजमेंट की, और ख़ास करके हेड कोच रवि शास्त्री की। देखिए, जब आप टीम बनाते हैं तो आपको पेशेंस रखनी होती है कि ये खिलाड़ी में टैलेंट है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इसको बाहर कैसे लेके आना है और उसको कैसे बनाना है, क्योंकि जब टीम आप बनाते हैं ना तो सालों साल लग जाते हैं। तो हमने 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता था तो लोग कहते थे आपको पैसा नहीं मिला, मालूम है क्या मिला हमें? जब वो सचिन तेंदुलकर मिला, राहुल द्रविड़ मिला, वीवीएस लक्ष्मण मिला, वीरेंद्र सहवाग मिला। ये जो चीज़ें हैं ना, जब आपकी जो टीम है जिसके लिए आप खेलते हैं देश के लिए, जब वो सुरक्षित हाथों में चली जाती है तो फिर आपको सेटिस्फैक्शन होती है कि आपने जो किया, ये देखिए वो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में वो हो रहा है कि ये जो किया है टीम मैनेजमेंट ने, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टीम मैनेजमेंट का कि ऋषभ पंत को ठीक तरीके से संभाला। I still remember I was an 8-year-old kid and I still remember the headline that I read the next day and it said the cup is ours. तो हमें कप तो मिला ही, पूरे देश को ये विश्वास मिला कि हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, इसीलिए राहुल द्रविड़ भी आ सके, इसलिए वीरेंद्र सहवाग आ सके, इसलिए सचिन तेंदुलकर भी पैदा हो चुके। एंड one more guest who's joining us at the moment, somebody who joined us in the pre-show as well, is Jayant. Will be crossing over. He is actually the CEO of Sportsbrick Networks Private Limited. Very warm welcome yet again, Jayant. What do you make of the session that we've had on day 2, session 1? India absolutely in the driver's seat. Thank you so much for letting me join in. It was really an awesome, you can say, day for India specifically, if I say. ऋषभ पंत ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाया है, ऑब्वियसली ये बात तो रही है कि हाँ, ऋषभ पंत को कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके का कॉन्फिडेंस ना केवल उन्होंने बैटिंग में दिखाया, जैसे ही हम लोग फील्डिंग करने आए, जिस तरीके से उनका कम्युनिकेशन चल रहा है सीनियर प्लेयर्स के साथ, इस तरीके से वो गाइड कर रहे हैं पूरी टीम की, मतलब आप कभी मान ही नहीं सकते कि ये अभी एक यंग प्लेयर है और अभी बहुत ज्यादा समय इन्हें टीम में नहीं हुआ है। हर एक बॉल पे, हर एक फील्ड पे गाइड करना, हर एक प्लेयर को, हर एक बॉलर को फील्ड सेट करना, और उसके अलावा बैट्समैन पे प्रेशर भी बिल्ड करना कि वी आर ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड और बहुत ज्यादा बॉल टर्न हो रही है। वो बहुत ही लाजवाब मैंने ये जो चीज देखी ऋषभ पंत की, एंड दिस वाज रियली रियली ऑसम। And what we like about Rishabh Pant is that he is so humble, he is so grounded, whatever he does. और क्रिकेट हमें एक चीज सिखाती है, क्योंकि मैं क्रिकेटर रहा हूँ, हम अपने सीनियर्स को भैया बोलते हैं, तो द वे ही एड्रेसेस हिज सीनियर्स, और उस हक से रोहित और विराट उनको डांटते भी हैं, तो डांट भी बड़े प्यार से सुनते हैं। ये जो मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये एक सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर और पर्सनालिटी बिल्ड कर देता है एक प्लेयर की। तो एक यंग प्लेयर, क्योंकि वो सब लोगों को इतना इस तरीके से जेलअप हुआ है, जब आप कह सकते हैं कि भैया सर जो भी उन्होंने बोला होगा, लेकिन इस तरीके से जेलअप उन्हें कर दिया गया, इतना कॉन्फिडेंस उन्हें टीम की तरफ से मिला है कि एक यंग प्लेयर जाके सारे प्लेयर्स को बोल रहा है कि दिस इज द वे वी शुड बॉल, दिस इज द वे, इसको हम प्रेशर बिल्ड करेंगे, दिस इज द वे दिस थिंग्स शुड बी रन। ये मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, जो दिखने में नहीं लगता कि आसान है, लेकिन इन सेंस ऑफ कैरेक्टर आई थिंक ये प्लेयर बहुत ही बड़ा स्टार बनेगा बहुत ही नियर फ्यूचर में। Jayant will surely be coming back to you, but one thing which he touched upon is very important, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं खेल खेलना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना, अगर आप बन गए तो माशाल्लाह, अगर आप नहीं बने तो दो चीजें खेल आपको सिखाता है। खेल शरीर तोड़ता भी है, खेल रिश्ते जोड़ता भी है, खेल पसीने में नहलाता भी है, खेल मन बहलाता भी है, और सबसे बड़ी चीज खेल कैरेक्टर बिल्ड कर। ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी बात की है
कि वो रिस्पेक्ट आज भी है। 1983 का हमारा ग्रुप है, चैंपियंस फॉर एवर जी। उसमें और कोई अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कोई और मैनेजर है, उसमें कोई अलाउड होना भी नहीं चाहिए। हो ही नहीं सकता, टोटली अलाउड नहीं है। लेकिन जब कभी एक नाम लिखा जाता है, उसको कभी हम सुनील गावस्कर नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं सनी भाई। सनी भाई, हाँ। तो ये रिस्पेक्ट आज भी जो आप बात की है कि वो रिस्पेक्ट की भैया कह के कहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये सिखाता है कि आप खेल तो खेल ही रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है ये बहुत ज़रूरी है। सौरभ, ये देखिए, पिक्चर्स देखिए और वहां पर खुशी देखिए। और अच्छी टीम वो टीम होती है जो एक दूसरे की खुशी में खुश होना जाने। यहाँ जेलसी के मायने नहीं होते हैं। जेलसी इज द होमेज पेड बाय द इंफीरियर टू सुपीरियर। ये मेरी जिंदगी के सुनहरे पल है। ये देख रहे हो जो जिसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही, ये रॉजर बिनी है। ये रॉजर बिनी है। आपको मालूम है 1983 के वर्ल्ड कप में इसने क्या कारनामा किया था? बताइए। ये सबसे ज्यादा विकेट इस इंसान ने लिए, ली थी। 18 विकेट लिए थे। हाँ जी। तो ये होता है टीम स्पिरिट कि आप जब खेलते हैं ना, आप भले टेक्निकली साउंड है, मैं आज भी बिलीव करता हूं मैं टेक्निकली कभी साउंड नहीं था। आई वॉज नॉट नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। आई वॉज नॉट पूरा टैलेंटेड। विश्व जानता कि आप टेक्निकली अच्छे बड़े साउंड। आई वॉज नॉट टैलेंटेड बाय आई मेड माई सेल्फ टैलेंटेड, फॉट फॉर इट। तो पाजी, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हर एक सबक जब आप लेजेंड से बात करते हैं सबक होता है। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा है वो ये है कि व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। यस, वो जरूरी है। और खास करके इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ के जो फास्ट बॉलर्स हैं, जिनकी गति आपको मालूम है 140 से शुरू होती है, और हमारे वो 80 के दशक में डोमिनेटेड बाय वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनको जब लग जाता था ना इस खिलाड़ी के पैर हटने शुरू हो गए हैं और लाइन में नहीं आ रहा, फिर वो आपको जीने नहीं देते। तो ये बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल लेवल पे। मैं क्यों कह रहा हूँ, टेक्निकली आप साउंड हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो अगर आप में गट्स हैं उस खिलाड़ी को, उस बॉलर को खेलने के लिए, फिर आप उससे वो पार पा सकते हैं। फिर आप एक जिम्मेदारी के साथ अपनी टीम का फायदा कर सकते हैं। और एक एंकर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शो में। मतलब शो आपको पिरोना होता है, मतलब ज्ञान तो हम लेते रहेंगे, बिकॉज व्हेन यू हैव अ लेजेंड सच एज हिम, आपका मन करता है सुनते जाइए। उसमें बीच में तड़का लगाने के लिए सौरभ हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, बात चल रही थी यहाँ पर टीम वर्क की, बात चल रही थी रवि शास्त्री एज अ हेड कोच की। जी जी। एक कोच का रोल सिर्फ कोच का नहीं होता, टीम मैनेजमेंट स्किल्स भी आप में आनी चाहिए, मैनेजर की स्किल्स आप में होनी चाहिए। जी। रवि शास्त्री की आवाज में अपने टीम को, बच्चों को शाबाशी दीजिए। As you told me that as far as my concern, I had 6 sixes in my career in an over. So to all the kids and to all the young ones and to all who are aspiring cricketers, I should say, I would say that first of all, the part where I loved very much while doing the commentary job, it was when Sachin was batting and I was saying that Tony was with me, Tony Gray was with me, and I told him that, you have seen so many players, but right now, right there, champion is playing like a champion. So just play there and play like a champion, because you are the future champions of India. And I have no doubts in mind that you can conquer each and everything, whatever whatsoever. And just best of luck, do your hard work, और छा जाओ। अच्छा जाओ, वेल डन सौरभ, ये हम तड़का बीच में लगाते रहेंगे। एंड द अदर थिंग दैट वी नीड टू हाईलाइट आल्सो द फैक्ट दैट बोथ टीम्स, इंडिया रेस्टेड बुमराह, दे प्लेड सिराज, इंग्लैंड सरप्राइजिंगली रेस्टेड एंडरसन, बट दैट हैज बीन देयर स्ट्रेटजी। पाजी, उनकी स्ट्रेटजी रही है। तो अब आयरनी ये है कि एक हैं जिन्होंने 600 से ज्यादा विकेटें ली हैं, एक हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा विकेटें ली हैं, मगर वो साथ नहीं खेलते हैं। तो साथ खेलते हैं तभी जब 4 फास्ट बॉलर, 3 फास्ट बॉलर इंग्लैंड में ये लोग खिलाएंगे। तो एंडरसन को कितना मिस किया इंग्लैंड ने? बहुत मिस किया होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह का पिच बिहेव कर रहा था, उसमें तेज़ गेंदबाज भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो ऊपर की जो परत है वो सॉफ्ट हो गई है, वहाँ पर वो जो रिवर्स स्विंग होगी या वहाँ पर वो 140 से ऊपर की स्पीड से बॉल गिरेगा तो वो भी उछाल ले सकता है। तो जैसे स्पिनर्स को खेलते हुए दिक्कत आ रही है, तो फास्ट बॉलर्स को भी खेलते हुए दिक्कत आ सकती थी। अब वो क्या उनकी पॉलिसी है वो टीम मैनेजमेंट ही बताएंगे, लेकिन मिस करेंगे एंडरसन को। And look at those numbers, and this is why we're talking about the fact, because those two gentlemen onto your screen are the best fast bowlers England has ever produced, and they're lucky to have both of them in the same era. Irony is, they don't play the two of them together. When Anderson is playing, Broad is not made to feature in the playing 11. 517 विकेट उनकी, और देखिए कंपैरिजन हम दोनों का देख रहे हैं, दोनों। एंड what do you make out of this? देखिए, ये क्रिटिसिज्म उनकी प्रेस में तभी आएगा
जब ये हारना शुरू हो जाएंगे। देखिए जब तक आप जीत रहे हैं ना, तो वो जो छोटी छोटी गलती होती है वो छुप जाती है। कोई मैं आपको बता सकता हूँ 2003 में हमने विश्व कप जीता, फाइनल हारे थे जी, साउथ तो अफ्रीका। कई चीज़ें गलतियाँ निकली। 1983 में उससे ज़्यादा गलतियाँ थी, जी, लेकिन किसी ने डिस्कस नहीं किया क्योंकि हम जीत गए थे, विश्व चैंपियन बन गए थे। लेकिन जब तक आप जीतते हैं ना, तो फिर वो छोटी मोटी गलतियाँ छुप जाती हैं। ये जो क्रिटिसिज्म होगा ये तब होगा जब ये हारेंगे और फिर वो प्रेस में आएगा कि देखिए एंडरसन को भी खिलाना चाहिए था, इसको क्यों बाहर रखा। तो ये हार पे होता है। लेकिन जब तक आप जीत रहे हैं, देखिए अब हम पहले टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहे, भारत हार गया है, ठीक है, उस समय क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन अब बिल्कुल जो मैच है वो इंडिया के फेवर में है। तो वो जो अगर कोई गलती हुई भी है उसकी कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ये हमेशा होता है, ये साइकोलॉजिकल है। ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि पिच को कैसे पढ़े। मुझे लगता है कि पिच को पढ़ने में इंग्लिश जो टीम मैनेजमेंट है उसको पढ़ने में गलती हुई है। And I think there's also a very valid point here that India actually they play two fast bowlers. क्या आप सोचते हैं यशपाल जी, ये भी एक ऑप्शन हो सकता था कि आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं, एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करके आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिलता और एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर को 5 खब्बू बल्लेबाज मिलते गेंदबाजी करने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने बैटिंग बड़ी अच्छी की और बॉलिंग भी किसी हद तक पहले टेस्ट मैच में अच्छा किया। लेकिन वो मैं अभी भी मानता हूँ कि ये टीम मैनेजमेंट, देखिए हम बाहर बैठे, हम बहुत दूर बैठे हैं। बेस्ट जो पर्सन है जो वहाँ पर जाकर पिच को देखता है, परखता है, फिर वो डिसीजन लेते हैं कि ये देखिए हमें ये 11 खिलाने चाहिए। ये अगर आप जीतते हैं तो वाहवाही टीम मैनेजमेंट को जानी चाहिए, अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो आलोचना भी वो टीम मैनेजमेंट की होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने वो पिच को पढ़ के फिर 11 बनाए। अच्छा ये बताइए, इतने लंबे करियर में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि ये विकेट मेरे हिसाब से ऐसी खेलेगी, मगर वो जो खेली वो बिल्कुल उससे जुदा थी? कई बार हुआ, हाँ, कई बार हुआ, हैरानी हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है। तो ये चलता है। देखिए अब पिच में क्या है वो, देखिए जो भी टीम मैनेजमेंट वो भी इंसान है, वो अपने एक्सपीरियंस से वो उसको चेक करते हैं। वो अगर आपने देखा तो वो थोड़ा सी आवाज़ के साथ देखते हैं कि इसमें हार्डनेस कितनी है, या ये जल्दी, जैसे ये पिच है 1 घंटे में ही खुल जाएगी और वो स्पिन के लिए मददगार होगी। तो ये होता है, लेकिन कई बार गलती हो जाती। सौरभ, हमसे गलती यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि आपसे हम तड़के के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो धोनी का यहाँ पर जिक्र होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कैप्टन कूल की, जब भी हम बात, ऐसा नहीं कि धोनी को प्रेशर नहीं फील होता था। अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत उम्दा एक्टर्स भी होते हैं। यशपाल जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपको जब लगती थी बॉल तो आप ऐसे भी नहीं करते थे। क्यों? आप कहते थे मेरा दर्द मैं ओपोनेंट्स को क्यों दिखाऊं, उनको क्यों एंजॉय कराऊं? गट्स मैं वही कह रहा हूँ, जो फास्ट बॉलर जैसे इमरान खान, वो जब वो कॉर्नर से बॉल करके आता था तो जब वो लगती है ना, मैं समझ सकता हूँ कि चेतेश्वर पुजारा ने जो लास्ट टेस्ट मैच में किया, मैं फील कर रहा था कि हमारे टाइम पे जब हम लोग को लगती थी इसको कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन मैं दाद दूंगा जो उसने लास्ट टेस्ट में किया। यही होता है कि जब आप दबाव से उभर कर आप टीम के लिए खेलते हैं और या तो ड्रॉ कराएं या जीते। मैं बताऊं आपको, 1983 में वेस्ट इंडीज़ में मार्शल ने मेरे सर पे मारा, मेरे हेलमेट लगा हुआ था, लास्ट ओवर था। मैं जब ड्रेसिंग रूम में गया मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मैं 9 घंटे बाद मुझे होश आया, मैं हॉस्पिटल में था। लेकिन मुझे लगा कि मेरी डॉक्टर ने कहा था 3 हफ्ते आप चलना भी मुश्किल है। मैं अगले दिन ग्राउंड पे गया, मेरे रिक्वेस्ट पे कि मुझे डिस्चार्ज किया जाए, तो मेरी टीम को ज़रूरत है, विकेट गिर गई थी। मैं वहाँ गया, वहाँ फिर मेरे 2 सर में फिर बॉल लगी 9 घंटे बेहोश होने के बाद। लेकिन मैं 11 नॉट आउट बाहर गया फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में मैंने 50 बनाए। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो मैच ड्रॉ हुआ। तो जब आप टीम के लिए कुछ करते हैं ना, ये सोच के कि मेरा कितना नुकसान हुआ है, तो फिर वो टीम को फ़ायदा होता है। वो चेतेश्वर पुजारा ने जो किया लास्ट टेस्ट मैच में, मैं कह रहा हूँ कि बाकियों ने रन बनाए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं चेतेश्वर पुजारा को दूँगा। And I think when you talk to a legend, there's so many lessons that you get to learn from the stories that he shared. The message here for all the youngsters is, when you are playing cricket, when you're batting, fielding, around the cordon, forward short leg, silly point, please wear a helmet. Yes. It is for your safety. It is for the safety of your loved ones as well. Wear a helmet when you bat. Wear a helmet when you field as a close-in fielder. जब मैं हेलमेट पहना हुआ था, जब मार्शल का बॉल मुझे लगा, लास्ट ओवर था, सेकंड डेज प्ले, हेलमेट के बाद मैं 9 घंटे बेहोश रहा। आप इमेजिन कीजिए, अगर ये देखिए वक्त है, मेरी किस्मत अच्छी है, मैं हेलमेट पहने हुआ था। अगर मैं हेलमेट पहने नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ बैठा। इस पर अच्छी बात है कि नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये आपने यंगस्टर की बात की है ना,
तो वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपके पास सेफ्टी के लिए आपके पास हेलमेट है, बाकी इक्विपमेंट्स हैं, ज़रूर पहनिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पहले नहीं थी, 78 से पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो वो चलता था। गावस्कर का अगर आप देखें 76 में बिना हेलमेट के 600 से ज़्यादा रन बनाने, आज की डेट में कोई सोच भी नहीं सकता। विविन रिचर्ड्स ने कभी हेलमेट विविन रिचर्ड ने कभी वो कह रहा था जिस दिन मैं हेलमेट पहनूंगा मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। उन्होंने जब तक वो खेलते रहे वो बिना हेलमेट के खेले। ये इसको कहते हैं गट्स। तो ये मैं कहता हूँ कि अब फैसिलिटीज़ हैं, जो आपने कहा बहुत अच्छी बात की है यंगस्टर्स के लिए कि आपके पास हेलमेट है, बाकी चीज़ें हैं, अगर आपके पास हैं ज़रूर पहनिए, क्योंकि चोटिल होने से बेटर है कि अपनी पहले सेफ्टी कीजिए। जी हाँ, और यहाँ पर इंग्लैंड काफ़ी चोटिल हमें नजर आ रही है और मुख्य कारण है रविचंद्रन अश्विन। उन पर जाने से पहले, थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, हम सौरव को पिक्चर में लाने ही वाले थे, एक संजीदगी भरा चैप्टर बीच में आ गया। सौरव, हम बात कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी की। वो अगर ड्रेसिंग रूम में होते इस समय तो लड़कों को क्या कह रहे होते वो और उसी अंदाज में धोनी। हाँ, बिल्कुल वो जैसे उनका जो एक टिपिकल रहता है कि हाय गाइस, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स अ सिंपल थिंग, यू नो, बी कूल, बी काम, डू योर हार्ड एंड गिव योर हार्ट अवे। आई मीन एक बार अगर आप पिच पर गए तो अपना 101% दीजिए। एट द वेरी सेम टाइम आपको अपने अपोनेंट को ये शो नहीं करना है कि आपको चोट लगी है, जैसा कि सर ने भी कहा, आपको कोई प्रॉब्लम है, वो भी नहीं, क्योंकि आप वहाँ किसके लिए गए हो? यू आर देयर ओनली फॉर योर कंट्री, ओनली फॉर इंडिया, ओनली फॉर योर प्राइड। तो आपको अगर जो भी करना है, बेस्ट करना है, एंड बेस्ट यू कैन डू इट इज़ टू स्टे देयर, play for your country and stay positive. Thank you so much. Bye. ये जो धोनी की बात की है, मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। जब उसका चेन हुआ था तब भी सिलेक्टर था। 2011 में वो कप्तान के रूप में जब वो वर्ल्ड कप जीता तो भी मैं सिलेक्टर था। वो कूल लगता है। देखिए, किसी कप्तान का गुस्सा दिख जाता है मैदान पर, जैसे विराट का है। जी। उसको कूल मत समझिए, लेकिन उसका गुस्सा ड्रेसिंग रूम में दिखता था। लेकिन उसको ये पता था कि ये जो 15 माइंड मेरे साथ चल रहे हैं, उनको संभालना कैसे, ये वो अलग से दिखता था। वो खासियत थी महेंद्र सिंह धोनी में कि देखिए, हर एक का माइंड सेम नहीं होगा। यही खासियत होनी चाहिए कप्तान में कि किसका कैरेक्टर कैसा है और उसको संभालना कैसे। फिलहाल इंग्लैंड के लिए मुसीबत यह है कि रविचंद्रन अश्विन को कैसे संभाला जाए। बिकॉज इन द मॉर्निंग शो आल्सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि रविचंद्रन अश्विन कह रहे होंगे जल्दी से भारत की पारी सिमट जाए, मेरे हाथ में गेंद दीजिए, आई विल बी बॉलिंग टू 5 लेफ्ट हैंडर्स। लंच से पहले 4 विकेट। अश्विन नहीं संभलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, अगर ये कहीं आज ये ऑल आउट हो गए तो ये मैच 5 दिन जाएगा, ये 4 दिन भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये पिच खराब होने वाली है माय डियर। और ये मैं हमेशा मानता हूँ कि देखिए, जो आपकी शक्ति उस पर खेलना चाहिए। हम बाहर जाते हैं तो पेस अटैक को फेस करते हैं। भारत की शक्ति स्पिन गेंदबाजी, और हमारी जो स्पिन गेंदबाजी है वो इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी से ज़्यादा अच्छी है क्वालिटी वाइज। तो वो अश्विन को अगर झेल पाए, यहाँ पे अगर कोई अर्धशतक लगा दे तो मैं कह रहा हूँ कमाल हो जाएगा। वो कोई शतक लगा देगा, मैं खड़ा होकर सैल्यूट कर दूंगा। We just hope it doesn't happen because we want India to win. India lost the first test match. Another player who actually made his debut this very test match is अक्षर पटेल। और सौरभ, मैं इनके लिए ये कहूँगा कि इंग्लैंड मार नहीं सकती लप्पा, क्योंकि अक्षर का गजब का है ठप्पा। क्या बात है, क्या बात है। तो हो गया कुछ इन पर हो जाए। आपने जब एक शेरो शायरी छेड़ी है, तो मैं एक जो शायर हैं अपना अख्तर साहब, जावेद अख्तर जी साहब, प्लीज। तो वो भी अपना क्रिकेटर बनना चाहते थे जी, लेकिन वो बन नहीं पाए। हाँ। अब उनके आप पार्टनर पूछेंगे- सलीम साहब, जो सलमान साहब के फादर हैं, वो तो क्रिकेटर थे ही। हाँ, क्लब क्रिकेट खेली। हाँ जी, तो खेले। पर उसके पीछे एक कॉमेडी क्वेश्चन ये है सर कि वो क्यों नहीं बन पाए, कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप क्यों नहीं बन पाए? तो और अक्षर के बारे में आपका क्या कहना रहे? सबसे बड़ी बात तो है ये जो आपने अक्सर बोला है। भाई देखिए, मुझे या तो मतलब ये जो शब्द है इसके अंदर अक्सर पसंद आया या अक्षर पसंद आया। और दूसरी बात ये, जब मैं गया था अपनी उसके लिए, अपना सिलेक्शन के लिए, 3 बॉलें मैंने खेली, मेरा फव्वारा बाहर आ गया। उन्होंने बोला भाई साहब आप तो पीछे के लिए कर रहे हैं, तो टप्पा पड़ने के बाद बॉल तो आपके हिसाब से आप खेल लेंगे, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं जो और बल्लेबाजों के लिए, वो बड़ी दिक्कत कर रहे हैं आप। तो इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस समय तक जो मैं अभी एक प्रोडक्ट का कैंपेन भी करता हूँ औरतों का, तो वो भी नहीं आया था। और उसका नाम औरतों है उस कंपनी का, तो वो मैं घुटने पे ना मैं मल सकता था ना जा सकता था। और आपको पता ही, फव्वारा हमारा दूर तक लग जाता है, 22 के 22 गज पूरे लपेट देता हूँ मैं। तो
तो बस अब क्या कह सकता हूँ, बस अक्सर के लिए मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि अक्सर तुम याद आते हो कि जब दिल की बात होती है, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि क्रिकेट में भी अक्सर याद आता है। देखिए हम हमारे में कला थी, हम क्रिकेटर्स बन गए। ये भी एक कला है, ये आप और हम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि ये मैं क्लैप करूंगा कि कमाल किया। ये इसके लिए भी मेहनत है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप बैठे और बोल दिया। हाँ, नहीं एक्चुअली हम दोनों ने ताली बजा दी। अब तीसरे जो हमारे शो में एक और मेहमान हमसे जुड़े, जयंत, थोड़ी देर पहले। जयंत, can you please clap for Saurabh? Yash Paji says this is an amazing talent, and actually, please can you clap for Saurabh? बहुत 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 ही उम्दा सौरभ, आप नेक्स्ट लेवल अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। मतलब अनबिलीवेबल है कि किस तरीके से आप सिचुएशंस को मैच करके सबकी आप मिमिक्री और वॉइस ओवर्स में यूज किए जा सकते हैं। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ में एफर्ट लगता है, और सौरभ जी के एफर्ट इज समथिंग विच इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट to keep this because हर चीज़ एक entertainment है, sports is an entertainment as well, so to keep everyone engaged and everyone make or feel happy, Saurabh is playing a very good or big role on it. Thank you so much. Yeah, because whenever the conversation gets very serious, we actually jump onto Saurabh and say, please हमें हंसा दीजिए, because खेल और जिंदगी में आपको हमेशा थोड़ा हंसना चाहिए। अगर आप हंसेंगे नहीं तो टेंशन में आप गुम हो जाएंगे। फिलहाल इंग्लैंड गुम नजर आ रही है। जयंत, do you think they have a way to just emerge out of this situation? I don't think so, क्योंकि ये पिच और ज़्यादा खराब होती जाएगी। मुझे तो लगता है कि अब ऑलमोस्ट बैकपैक हो चुका है इंग्लैंड का, लेकिन इट्स क्रिकेट, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंडिया इज इन वेरी गुड सिचुएशन एंड आई थिंक सो कल रात से ही कि इंडिया इज गोइंग टू विन। And before you send in your next tweet, can you announce it on our show? What is that going to be? इसके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन what I feel is India is definitely going to win. That's my high hopes. If you'd been a batsman, let me tell you, you'd win. We'll soon be coming back to you, Saurabh. It's always a pleasure to talk to you. Saurabh always adds to the glamour in the show and with his. इसमें एक लाइन जोड़ देता हूँ कि भले कुछ भी हो, ये मैच 5 दिन नहीं चलेगा। पाजी, उनका सोचिए जिनकी दिहाड़ी 5 दिन चल रही है। देखिए हालात, देखिए आप पिच के हालात देखिए। 4 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के, वो उनको 1 घंटा संभालना मुश्किल हो रहा है। हम बात करें 5 दिन की, तो पर मुझे लगता है कि भले 5 दिन चले या ना चले, लेकिन भारत की यहाँ जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत है। क्या आप मानते हैं यश पाजी, ऐसे में जिक्र करना लाजमी हो जाता है कि टॉस का, मान लीजिए भारत ये टॉस हार जाता, क्या ये सिचुएशन पलट जाती? फिर अब मैं जो शब्द इस्तेमाल किए हैं इंग्लैंड के लिए, वो करेक्टर दिखाना पड़ता भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि हम लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। जो भारत की पिचेज़ हैं, आप भी खेले हैं, हम भी खेले, जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसमें बहुत तेज़ पिचेज़ नहीं होती, ऐसी ही इससे थोड़ी सी बेटर मिलती हैं, लेकिन टर्निंग ट्रैक मिलते हैं। कभी कभी तीसरे चौथे ओवर में आपने भी फेस किया होगा कि स्पिनर आ गए, तो वो एक्सपीरियंस भारतीय बल्लेबाजों को है, तो वो इनसे ज़्यादा उनको करेक्टर दिखाना पड़ता भारतीय बल्लेबाजों को। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये खेल है, टॉस पहले मैच में हारे, इसमें विराट जीते हैं, तो इस समय स्थिति मजबूत है, तो इसको पॉजिटिव नोट पे लेना चाहिए। और थोड़ी देर पहले हम अक्सर का जिक्र कर रहे थे, और अक्सर इससे बढ़िया डेब्यू क्या हो गया, ऐसी विकेट मिल गई। और विकेट डेब्यू किसकी मिल गई? जो रूट, वो विकेट जो भारत तलाश रहा था पहले टेस्ट मैच में। सौरभ, ब्रिलियंट डेब्यू। एब्सोल्युटली। और जाते जाते मेरा 30 सेकंड दूंगा आपको, 30 सेकंड में क्या नया किरदार पेश कर सकते हैं? आप देखिए कि एक कैरेक्टर थे, मतलब मैं अगर ईशांत शर्मा को भी मैंने स्टडी किया था, तो वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि गला किसी ने जोर की पकड़ लिया उनका। तो अगर ईशांत शर्मा अपनी टीम को भी बकअप करेंगे और इसको रैपअप भी करेंगे, तो वो ऐसे करेंगे, और यार मैंने तुमसे इतनी बार बोला है कि मेरे को तुमने शुरुआत में बॉलिंग दे दी, लेकिन उसके बाद तुमने बॉलिंग नहीं दी मेरे को। यार पहली विकेट मिली, उसके बाद कैप्टन ने बॉल ले ली, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो विकेट ले लेंगे, उनको विकेट दे दो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। Let me tell this to the viewers here. उनका कद और स्टैचर बहुत बड़ा है, मगर उनका नाम है छोटू, उनका निकनेम जो है वो छोटू है। सो ऑन दिस वेरी स्वीट नोट हम आपको बताएंगे, इस पर और भी चर्चा होगी ब्रेक के उस पार, जब क्रिकेट गपशप होगी अर्जुन और शिखा के साथ। I'd like to yes sir, you want to add something? ईशांत, एक लाइन जोड़ूंगा, ईशांत भले वो लंबा है, कमाल कर रहा है, कि दिल का बहुत हीरा है। अरे ऐसे हीरे हमें
और जरूर मिलेंगे और हीरे आपको देखने में मिलेंगे ब्रेक के उस पार भी हमारे शो में। और भारत जिस तरीके से खेल रहा है, बहुत सारे हीरे स्पिनर्स हमें और नजर आ रहे हैं। अक्षर पटेल का आज डेब्यू हुआ, रूट का विकेट उन्होंने लिया। सौरभ थैंक यू, यश पाजी थैंक यू। टू ऑल द व्यूअर्स, वी जस्ट लाइक टू से दैट स्पोर्ट इज ऑल अबाउट incredible moments where sheer human will and desires overcome the odds. India are overcoming the odds from the first test match. They are in the driver's seat. Slip into a short little breather on the other side. Cricket Gupshup. Stay tuned.